Good morning, बच्चों. How are you? I hope you all are fine. So, today we are going to do Gulliver's Travel Workbook, page number 102. आज हम Gulliver's Travel चैप्टर की वर्कबुक एक्सरसाइज करेंगे, वर्कशीट्स जो कि आपकी वर्कबुक में गिवन है. So, first of all, there is question number 1. Read the lines and answer the riddles. You know riddles, पहेलियाँ. Okay. So first is, I take you across where no man walks. When I am tired, I rest at docks. I am neither a fish nor a whale, but still I can float and sail. Who am I? Tell me now or by mail. So who is this? Where no man walks and who can float on the water but not a ship, but not a fish. So what is this? It's a boat. Okay. So you will write the answer yourself here. Okay. Write here boat. Next. You see me often running on roads with different numbers as my name. To places I take you, man or dame. I am the Iron Man, big and strong. I carry you daily. Tell me if I am wrong. So what is that? Who runs on the road and made of iron? जो लोहे का बना होता है. क्या होता है जो रोड पर चलती है? Yes, you are right. That is bus. Okay. So you will write the answer here, bus. So you will write I'm telling you the answers, but you will write the answers yourself in the homework. I know you know the spellings of boat and bus. Now, third riddle. With a red cross on my white face, I run on the road with a fast pace, means speed. To the doctor I rush when someone is ill. On your phone I am the number 102. Like your mama, I care for you too. Who am I? So, what is that? Having red cross sign, plus sign. As you can see in this picture, plus sign. And who runs in the speed, जो बहुत तेज चलती, जिसको कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोकती. So what is that? Yes, you are right. That is ambulance. So you will write the answer here, ambulance. Next, I have wings, but I am not a bird. I have a nose, but I can't smell. I talk with the clouds in the sky. I have a tail, but I am not a cow. Tell me who I am just now. So, who have wings but not a bird and who flies in the sky? Yes, think everyone. Yes, you are right. It is an aeroplane. Okay, you will write the answer here, aeroplane. Now let's do next. Here you can see 3 animals. यहाँ पर 3 animals दिए हुए हैं. First is eagle. Next is penguin. Very good. It's penguin. Next, this is ostrich. Yes. Okay. Tell me, in eagle and in penguin, which is large? कौन बड़ा है eagle और penguin में? Yes, this is penguin who is big. Yes, very good. Now tell me, in 3, in eagle, penguin and ostrich, who is the biggest here? Large. कौन सबसे बड़ा है? Yes, you can see it. This is ostrich.
who is the largest among all. So what we have done here, we have compare, हमने यहाँ पर इन सभी एनिमल्स को आपस में कंपेयर किया है, ठीक है. जो ईगल है वो लार्ज है, मीन्स अगर हम देखें तो वो थोड़ा बड़ा है. पेंगुइन क्या है, वो ईगल से भी बड़ा है तो वो लार्जर हुआ. और जो ऑस्ट्रिच है वो सबसे बड़ा है तीनों में तो वो लार्जेस्ट हुआ. अब हमें इनको बताना कैसे, हम इनको कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट इट. सो आप सब यहाँ ध्यान देंगे, पे अटेंशन एवरीवन हियर. व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और पीपल, वी ऐड er or more to the describing word. You know what are the describing words? जो डिस्क्राइब करते हैं, जो हमें किसी भी थिंग के बारे में बताते हैं. The describing words are those words who tell us about some things. Okay, जैसे ये the pencil is small, ostrich is big. Okay, these are the describing word. Adjectives आपने पहले पढ़े हुए होंगे तो उन्हीं को describing words कहा जाता है. Okay, so if you are comparing two things, जैसे हमने यहाँ पर पहले ईगल और पेंगुइन को कंपेयर किया, हमने यहाँ पर टू थिंग्स को कंपेयर किया. सो हम कैसे राइट करेंगे, पेंगुइन इज larger than eagle. Okay, when we compare three or more things, people, we add est or most to the describing word. हमने यहाँ पर ऑस्ट्रिच को ईगल और पेंगुइन से कंपेयर किया तो यहाँ पर 3 एनिमल्स हो गए. ओके, मोर देन 2. तो जब हम 3 या 3 से ज़्यादा इफ़ कंपेयर कर रहे हैं, इफ़ वी आर कंपेयरिंग 3 और मोर थिंग्स, देन हम क्या करते हैं, व्हाट विल वी डू, हम लार्ज के साथ क्या ऐड कर देंगे, लार्जेस्ट. सो वी कैन से ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एनिमल. Now here you can see it. So what are we doing, we are doing the degree of comparison. Okay, degrees of comparison of adjective we are doing. So आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, use the correct degree of adjectives to fill in the blanks. One has been done for you. Okay, so first है eagle is a large bird. हमने देखा अगर हम सिर्फ वन के बारे में बात कर रहे हैं, if we are talking about only one, so eagle is a large bird. Okay, penguin is larger than an eagle. Now how many animals here, 2 animals, one is eagle and one is penguin, so 2. So if we are comparing 2, अगर हम 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन है, वॉट एवर द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज गिवन, वी विल ऐड er. बट यहाँ पर ऑलरेडी 1 e गिवन है तो वी विल राइट ओनली सिंगल e, सो दिस विल बिकम लार्जर. ओके, पेंगुइन इज लार्जर देन एन ईगल. नेक्स्ट, ostrich is the largest bird of all. All means many, more 3 or more than 3. So eagle, penguin and ostrich, these are 3 animals. Okay, and if we are comparing 3 animals, अगर हम 3 animals को compare कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ हम क्या लिख देंगे, est. बट यहाँ पर ऑलरेडी 1 e गिवन है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, we will simply write est, largest. ओके, आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा. नाउ डॉग इज अ डैश एनिमल, सो हाउ मैनी एनिमल्स, ओनली 1. सो ओनली डॉग इज अ डैश एनिमल, हाउ मैनी एनिमल्स, ओनली 1. सो ओनली 1 वी विल राइट ओनली स्मॉल वर्ड इज गिवन ना, सो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे, स्मॉल. डॉग इज अ स्मॉल एनिमल. Next is rabbit is dash than a dog. How many animals? 2, rabbit and dog. So अगर हम
टू एनिमल्स को या थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड ER विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्मॉलर. रैबिट इज स्मॉलर देन अ डॉग. नेक्स्ट, माउस इज द डैश एनिमल ऑफ द थ्री मोर देन 2. अगर हमें 3 को कंपेयर करना है सो व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड EST विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो माउस इज द स्मॉलेस्ट एनिमल ऑफ द 3. ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा. आगे देखते हैं. इंडिया इज अ डैश कंट्री, only one, so we will write it as it is. India is a big country. Next, Canada is dash than India. So two countries, Canada and India. So अगर हम two things को compare कर रहे तो हमें क्या करना है, we have to add ER. So how we will write it, bigger. Canada is bigger than India. Next, Russia is the dash of all. All means 3 or more than 3. Okay. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड बिग के साथ हम EST लिख देंगे. So ये क्या बन जाएगा, बिगेस्ट. Russia is the biggest of all. Kanchenjunga is a dash mountain peak. Only one. Kanchenjunga is only one here in this sentence. So we will write here only high. Next, K2 Godwin Austen is dash than Kanchenjunga. So here are two mountain peaks. One is K2 Godwin Austen name and Kanchenjunga. So 2. So if we are comparing 2, we have to add ER. So it will become higher. Next, Mount Everest is the dash mountain peak in the world. In the world means it can be possible there are 3 or more than 3. So what will we write here? EST with high. So it will become highest. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. Next, deer runs dash. Only one animal. So we will write here fast. Deer runs fast. Next, lion runs dash than a deer. 2 animals. So if 2, we have to add ER. Faster. हम ER लिख देंगे फास्ट के साथ. ठीक है. नेक्स्ट है, चीता इज द डैश एनिमल ऑफ ऑल मीन्स मैनी. 3 से ज़्यादा और 3. सो फास्ट 3 से ज़्यादा है या 3 है तो हमें क्या करना है, हमें फास्ट के साथ EST लिखना है. सो ये क्या बन जाएगा, फास्टेस्ट. तो हमने ये क्या किया है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है. अब हम करेंगे सिमिली. सो व्हाट इज दिस, fill in the blanks using the words given in the help box. One has been done for you. यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, सॉफ्ट, फ्रेश, स्लो, बिजी, फास्ट, ब्रेव, अलाइक, कूल, वाइड. ओके, हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज़ का रेफरेंस देके. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, माई हेयर इज़ एज सॉफ्ट एज फर. यू नो फर इज़ द स्किन ऑफ एनिमल लाइक कैट. ओके, वो आपको पता है कितना सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है. सो हम यहाँ पर अपने हेयर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, फर से, कि माई हेयर इज़ एज सॉफ्ट एज फर. ऐसे ही देयर आर सो मैनी थिंग्स विच वी यूजुअली कंपेयर. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंपेयर करते हैं. सो अब आपको अच्छे से गेस करना है कि वह क्या हो सकता है. रोहन इज़ एज डैश एज अ लायन. यहाँ ऊपर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, हिंट्स गिवन है ऑलरेडी. So you have to guess and think and tell me the correct answer. Rohan is as dash as a lion. अब lion कैसा होता है? Yes, it's brave. Rohan is as brave as a lion. Next, her teeth are as dash as snow. Snow. You know the color of snow?
यस इट्स वाइट, तो उसके टीथ कैसे हैं? एज वाइट एज स्नो. माई ग्रैंड मदर इज एज डैश एज अ क्यूकम्बर. यू नो क्यूकम्बर कैसा होता है? सॉफ्ट, हम उसको ईजिली च्यू कर सकते हैं ना, अच्छे से ईजिली चबा सकते हैं ना. सो माई ग्रैंड मदर इज एज सॉफ्ट, सॉरी, कूल. माई ग्रैंड मदर इज एज कूल एज अ क्यूकम्बर, क्योंकि हम गर्मियों में खाते हैं ना क्यूकम्बर, बिकॉज इट कीप्स अस कूल, यह हमें ठंडा रखता है. ठीक है. नाउ दिस रूम स्मेल्स एज डैश एज अ डेजी. स्मेल्स, डेजी आपको पता है एक फ्लावर है, तो रूम किसकी तरह स्मेल करता है? एज फ्रेश एज अ डेजी. डेजी इज अ फ्लावर. शबनम इज वॉकिंग एज डैश एज अ स्नेल. यू नो ए स्नेल, स्नेल इज द स्लोएस्ट क्रिएचर, वो सबसे स्लो चलता है. सो what will we write here? Slow. Shabnam is walking as slow as a snail. The player runs as dash as a cheetah. You know cheetah, it runs very fast, है ना. So the player runs as fast as a cheetah. हम यहाँ पर प्लेयर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? टू चीता. These boys are as dash as two peas in a pod. Two peas in a pod means जब चीज़ें एक जैसी होती हैं या पर्सन एक जैसे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अलाइक. ओके. These boys are as alike as two peas in a pod. एक जैसे. My mother is as dash as a bee. Do you know? जो मक्खी होती है वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करती है, लाइक हनी निकालना, ओके, जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनका जूस पीना. ओके. सो माई मदर इज एज बिजी एज अ बी. ओके. एंड यू शुड ऑल्सो बी लाइक अ बिजी बी. अरविंद इज एज डैश एज लाइटनिंग. आप जानते हैं लाइटनिंग क्या होता है? वॉट इज़ लाइटनिंग? बिजली चमकना. ओके. और आपको पता है वेन एवर देर इज़ अ थंडर, सो द लाइटनिंग इज़ वेरी फास्ट और क्विक. ओके. सो अरविंद इज एज डैश, सो वॉट विल कम हेयर? So Arvind is as dash as fast as lightning. Okay. Next, giants of the world. What do you know? What is the meaning of giant? Giant means very big, biggest. Okay. So in the story Gulliver's Travel, Gulliver finds himself in the lands of giants. A giant means anything which is huge. Huge means big and enormous in size. Huge and enormous means big. Name the following giants using the help box. One has been done for you. Okay. Now let's do giants of the world. यहाँ पर एक ऑलरेडी एग्जाम्पल गिवन है. अ जाइंट ट्री, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया. और आपको बाकी आंसर्स इस बॉक्स में से फाइंड करके लिखने हैं. अ जाइंट बर्ड, जाइंट बर्ड इज, यस, इट्स एन ऑस्ट्रिच. नेक्स्ट, अ जाइंट लैंड एनिमल. कौन है लैंड एनिमल? विच इज़ द लैंड एनिमल? यस, इट्स अफ्रीकन एलिफेंट. नेक्स्ट इज अ जाइंट वाटर क्रिएचर. कौन है जो पानी में रहता है? सबसे बड़ा क्रिएचर, वाटर एनिमल. यस, इट्स ब्लू व्हेल. अ जाइंट रेप्टाइल, रेंगने वाला. यस, इट्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. अ जाइंट एयरप्लेन, सबसे बड़ा हवाई जहाज. यस, एंटोनोव N225. अ जाइंट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग. यस, बुर्ज खलीफा. अ जाइंट फ्रूट, सबसे बड़ा फ्रूट.
यस, इट्स जैक फ्रूट, कटहल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अ जाइंट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। अ जाइंट रिवर, सबसे बड़ी नदी, यस इट्स अमेजॉन। सो आई होप बच्चों इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप सभी को यह काम जल्दी से जल्दी पूरा करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ठीक है, तो आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और आप कोविड-19 रूल्स को फॉलो करेंगे और सेफ रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।